Hello students, let us continue with our numericals. Today we are going to end with our chapter. और सेकेंडली इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट मैं आंसर्स आप लोगों को डिक्लेयर कर रही हूँ. कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 29. आप लोगों को लिखना ही है, नोटबुक लेकर बैठ जाइए. जो भी मैं बोल रही हूँ वो आंसर्स हाथों हाथ लिखते जाइए, एज इट इज़ आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 29. A hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon 0, sigma upon 2 epsilon 0 और यूनिट वेक्टर हम n के फॉर्म में ले रहे हैं, where n is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. आंसर लिखिए. लेट E के ऊपर वेक्टर, लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल. लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर. फुल स्टॉप. इन ऑर्डर टू फाइंड E, वेक्टर लिखना ऊपर. इन ऑर्डर टू फाइंड E, कंसिडर दैट द होल HOLE, consider that the hole in the conductor is plugged. Full stop. Let E dash vector be the electric field. Let E dash vector be the electric field due to the charged conductor at a point outside it. Then, according to Gauss's law, E dash is equal to sigma upon epsilon 0 unit vector n cap. Next line, after plugging the hole, the conductor becomes closed, comma, so the electric field inside it must be 0. Full stop. This shows that इससे रिलेटेड कल भी हम लोगों ने किया था कि वो ए वाला एक पार्ट था, उसके बीच में बी रख दिया था. फिर हमें बोला था कि ए तो 0 है, तो क्या उसके अंदर चार्ज 0 है? तो हम लोगों ने आंसर दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि अंदर चार्ज 0 हो. हम लोग मानते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कैन बी प्रेजेंट, प्लस क्यू और माइनस क्यू. वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं. यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं दिस शोज दैट इनसाइड द कंडक्टर electric field due to rest of the conductor must be equal and opposite to that due to the small portion of conductor that plugs the hole. Full stop. However, outside the conductor, the two fields are in the same direction. That is along the outward normal to the surface of the conductor. It therefore follows that electric field in the hole due to the rest of the conductor E is equal to half of E dash vector. ई डैश वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ऊपर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
epsilon 0 n वेक्टर यूनिट वेक्टर n गैप। फाइनल आंसर हमारे पास में आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यूनिट वेक्टर n गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point where E is equal to 0 of the configuration. Show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Let us assume that, आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है। Let us assume that the test charge placed is in stable equilibrium, is in stable equilibrium, that is, it is placed at the null point. It is placed at the null point. Full stop. If it is so, then on being displaced, अगर हम उसको उसकी जगह से हटाएं, on being displaced, comma, the test charge should return to its original position. अगर हम उसको उसकी जगह से हटाते हैं तो उसे वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। फुल स्टॉप। इट इम्प्लाइज दैट there will be inward flux full stop. According to Gauss's law, there cannot be any electric flux as it does not enclose any charge. Hence our assumption is wrong and test charge cannot be present in equilibrium. Hence our assumption is wrong and test charge cannot be present in equilibrium. इसका B part, verify the result for simple configuration of two charges of same magnitude and sign placed a certain distance apart. पहले एक अकेला रखने का बोला था, अब दो बोले हैं और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है। हम लोग लेंगे लेट द टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन हैज द नल पॉइंट in the midpoint of line joining the two charges. दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट जो है वो उनका नल पॉइंट कहलाएगा। अब क्या होगा कि जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में नल पॉइंट है, अब एक चार्ज को अगर हम अपनी जगह से हटाएं तो डेफिनेटली ये वाला चार्ज उसे अपनी जगह पर रिस्टोर कर देगा, या इसे अगर जगह से हटाएं तो ये वाला चार्ज उसे वापस अपनी तरफ ले लेगा। लिखते हैं अपन लोग, if the test charges are displaced, if the test charges are displaced, then it will return back due to the restoring force that comes into play. बट जो मेन बात है वो ये वाली रहेगी, आपको एमसीक्यू में भी काम में आएगा, इसे मार्क करके रखना। बट इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, बट इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली
from the null point along the normal, comma, it will not return. कहीं और डिस्प्लेस किया तो ठीक है, नॉर्मल के अलॉन्ग अगर हम लोगों ने डिस्प्लेस किया तो इट विल नॉट रिटर्न. डेफिनेटली दिमाग में आएगा क्यों, लिखिए, बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू two charges will take it away from the null point. Hence, they cannot be present in stable equilibrium. Next, question number 33. A particle of mass m and charge minus q enters the region between the two plates, initially moving along x-axis with speed vx. The length of the plate is L and uniform electric field is E and is maintained between the two plates. The plates. Show that the vertical deflection, vertical y direction में, of the particle at the far edge of the plate is इतना इतना इतना. Values हमें दे रखी है. लिखिए, let y be the vertical deflection. पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, तो इनिशियली इट इज मूविंग इन, दे रखा है x डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी हुई है, इट इज नॉट मूविंग. इनिशियली वो कहाँ मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वो मूव भी नहीं कर रहा. तो हम लोगों ने निकाला u इज इक्वल टू 0. अब एक्सीलरेशन, तो हमारे पास होता है f इज इक्वल टू ma. f की जगह हम लोग लिखेंगे qe, m की जगह m ही रहेगा. a जो है वो हम लोग लेंगे y डायरेक्शन वाला, तो a y इज इक्वल टू qe बाय m. ये मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज QE L square upon 2m Vx square. ऐसा हमें बोला है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये वाली है. वर्टिकल डिफ्लेक्शन यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डिस्टेंस कितना चला, y में चला. इनिशियली उसकी वेलोसिटी कैसी थी, तो हमने बोला 0. हाफ a कौन सा लेना है, y वाला लेना है, तो a y की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली. कितनी आ गई हमारे पास में, q e बाय m. देखिए आपका, ये आपको प्रूव करना है. क्या क्या आ चुका आपके पास, q e, ये रहा q e, नीचे 2m, ये आ गया 2m. खाली कौन बचा, टाइम वाला पार्ट, t स्क्वायर. आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t इज इक्वल टू l अपॉन vx. यहाँ t स्क्वायर है तो इट इज l स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर. ये हो गया आपका हेंस प्रूफ. ऐसा नहीं सोचना कि बाप रे हम कैसे करें, इधर चलिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. y डायरेक्शन में निकालना है, y वाले से पार्ट हम लोगों ने लिया. ठीक है, अब क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो कि टाइम पीरियड आपने x वाला क्यों ले लिया, आना चाहिए ये क्वेश्चन. तो कितनी देर तक फोर्स एक्ट किया when it is present in electric field. आपको चाहिए तो वहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिए, where t is the time for which the force, it is the time for which the force due to electric field acts on the particle. कितनी देर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा, तो वो जो टाइम है x डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो टाइम भी कौन सा वाला लेंगे, x वाला. फिर वो डिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ, तो बोले y पे डिफ्लेक्ट हुआ. जब डिफ्लेक्ट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें वो फाइंड करना है.
तो हमें करना फाइंड वाई है। उसके लिए हम लोगों ने एक्सीलरेशन जो मूवमेंट हुआ वो वाई वाला लिया, लेकिन टाइम कितनी देर तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट किया व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा था तब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हुई, इसलिए टाइम पीरियड के अंदर हमने एक्स वाली वैल्यू को यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सपोज दैट द पार्टिकल इन अबव क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी vx। इसी वाले क्वेश्चन में हमें अब वैल्यू दे दी है, हमें बोला गया है vx इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड if E between the plates separated by 0.5 centimeter plate, okay, इसको अभी 2 मिनट रुकते हैं। if E between the plates separated by 0.5 centimeter is 0.5 वाले को बाद में काम में ले रही हूँ, E is equal to 9.1 into 10⁻² Newton per coulomb, where will the electron strike the upper plate। अब E की वैल्यू भी हमें पता है, चार्ज E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31, क्या क्या चाहिए, हाफ, चार्ज, E, M, Vx सब हो गया, खाली क्या बच रहा है, L की वैल्यू हमारे पास बच रही है। L के लिए उन लोगों ने हमें क्या दे रखा है कि if E between the plates separated by 0.5 सेंटीमीटर इज इतना, तो जो प्लेट का सेपरेशन है वो हमें 0.5 सेंटीमीटर दिया है, तो y कितना बचेगा हमारे पास, अंडरलाइन करके रखना है इस बात को, क्योंकि आप लोग रॉन्ग करेंगे ही, वापस वही बोल रही हूँ कि आप लोग रॉन्ग करेंगे ही। तो L की वैल्यू जो हमें लेनी है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, एक मिनट। सपोज दैट द पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी इतना, इफ E इज इक्वल टू इतना सेपरेटेड बाय 0.5 सेंटीमीटर इज इतना, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, ठीक है, फाइन, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। हमें जो वैल्यू ढूंढनी है L की ढूंढनी है, तो हमें जो सेपरेशन दे रखा है वो y के टर्म्स में दे रखा है, सही लिखा था मैंने यहाँ पे 0.5/2 यूज करिएगा। जो सेपरेशन हम लोगों को लेना है वो कितना लेना है, 0.5/2, दैट इज 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। y की वैल्यू ये वाली, बाकी vx, e, m सब कुछ दिया हुआ है, l की वैल्यू हमें ढूंढनी है। 34, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया है, क्वेश्चन नंबर 31, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क। अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 quarks each. 2 types of quark, so called up quark denoted by U and charge plus 2e/3 and down quark denoted by d of charge minus e/3 together with electrons build up ordinary matter, suggest a possible quark composition of proton and neutron। ठीक, हमें बोला गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं, उन यूनिट्स को हम लोग नाम देंगे क्वार्क। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि हमें ये मालूम है कि एटम कैसे मिलकर बना हुआ है, तो एटम के पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे मिलके बने हैं, तो इनके पास भी एक छोटा पार्ट है जिसे हम लोग बोलेंगे क्वार्क। क्वार्क, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ भी प्रोटॉन ले रहे हैं, दे रहे हैं, न्यूट्रॉन निकल रहा है ना। क्वार्क एक किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होता है या नहीं होता, अभी ये स्टडीज हमारी चल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली हम ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्मॉलर पार्ट हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज क्वार्क। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है कि इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट कॉल्ड एज क्वार्क। A proton and neutron consist of 3 quarks each.
हर एक कितने क्वार्क से बना है? 3 क्वार्क से। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क। अब वो 2 क्वार्क कौन से? तो हमें बोला गया है एक है अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को हम लोग यू से डिनोट करेंगे और डाउन क्वार्क को हम लोग डी से। ये आपका क्वेश्चन ही चल रहा है, मैं आंसर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन ही चल रहा है। अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 quarks each. 2 types of quark so called up quark denoted by U and charge plus 2 E by 3 and down quark denoted by D of charge minus E by 3. Together with electrons build up ordinary matter. Suggest a possible quark composition of proton and neutron. अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन मतलब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं और न्यूट्रॉन का मतलब हुआ चार्ज इज इक्वल टू 0। कितना पता चलता है? तो हमें हमारा आंसर कैसा चाहिए? ये प्रोटॉन के लिए और ये न्यूट्रॉन के लिए स्टेटमेंट लिखिए कि द प्रोटॉन हैज चार्ज ऑफ प्लस ई एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, है ना? हमें बोला है कितने क्वार्क का बना हुआ है, तो प्रोटॉन भी 3 क्वार्क का बना है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क का बना है। क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, नहीं पता चलता तो। क्वार्क क्या है? तो प्रोटॉन का एलिमेंट्री पार्ट क्वार्क, न्यूट्रॉन का एलिमेंट्री पार्ट क्वार्क, सॉरी। हर एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना है, हर एक न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना है। क्वार्क 2 तरह के होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू प्लस 2e/3, डाउन क्वार्क की वैल्यू माइनस e/3। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब उन्होंने बोला है कि आपको एक प्रोटॉन बनाना है और एक न्यूट्रॉन बनाना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आपको एक प्रोटॉन बना के देना है, एक न्यूट्रॉन बना के देना है। कैसे बनेगा? तो क्वार्क के 3 कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब आपको समझना है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस ई है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है, तो आपको इन्हें इस तरीके से लिखना है कि हमारा चार्ज कितना आ जाए, हमारे पास आंसर आ जाए पॉजिटिव टर्म में। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ले लेंगे यू, यू और डी। लिखिए यू, यू, डी, तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा यू, डी, डी। नहीं पता चला? U मतलब प्लस 2e/3, D मतलब माइनस e/3, एक और D मतलब माइनस e/3। दिस इज प्लस 2e/3, ये 2 बार है, माइनस 2e/3, 2e/3 माइनस 2e/3 कट, आंसर कितना बचा? 0। तो न्यूट्रॉन काय का बना है? एक चाहिए अप क्वार्क और 2 बार चाहिए डाउन क्वार्क, और ये काय का बना है? 2 बार चाहिए अप और 1 बार चाहिए डाउन। तो आंसर आपको ये वाले लिखना है दोनों। आपसे पूछा है कि प्रोटॉन बनाकर दो और न्यूट्रॉन बना के दो, तो हमने बोला प्रोटॉन में 3 पार्ट्स हैं, वो 3 पार्ट कौन से होंगे? यू, यू, डी, और न्यूट्रॉन में 3 पार्ट्स होंगे, दैट इज यू, डी, डी। अब आपका सिर्फ एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और साथ में ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।